رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے, اللہ کے سامنے, پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں, یہ سب ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار, اللہ نے کیا کہا, حضور نے کیا کہا, یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تخلیق کی جاتی ہے, ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا, اب ایسے کرنا. ایکٹنگ کر, جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لوگ, سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے. بولنا ہمارا کام ہے, دل کا بدلنا اللہ کا. پاکستان میں پیر صاحب ہیں جو اپنے 100 مریدوں کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ بغداد شریف جاتے ہیں. مگر جانا فرض نہیں, وہ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. غوث پاک کے عاشق ہے, وہ جائیں, بغداد ہی میں گھر بنا لیں, روزانہ فجر سب 5 نمازیں غوث پاک کی مسجد میں ادا کریں, ہر نماز کے بعد غوث پاک کے مزار پہ فاتحہ پڑھیں. کوئی گناہ نہیں, بہت اچھا سپیریئر کام ہے وہ. اگر دل کے اخلاص کے ساتھ اگر پڑھیں گے, کتب ولی ابدال سب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر ولایت کی نعمتیں عطا فرمائے گا, وہ کرے. مگر یہ فرض نہیں ہے کہ سوال ہو قیامت کے دن کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے, تم اجمیر کیوں نہیں گئے, تم بریلی کیوں نہیں گئے, تم پنڈوا شریف کیوں نہیں گئے, تم ہر جمعرات کو فاتحہ کیوں نہیں دلایا. یہ سوال نہیں ہوگا. ہماری ماں بہن بیٹیاں رجب کا روزہ, شعبان کا روزہ, 1 تاریخ کا روزہ, 27 رجب کا روزہ, 15 رجب کا روزہ. اب صاحب شوہر بولتا ارے میری بیوی تو صاحب روزہ رکھ رہی ہے, ہم نہیں رکھتے مگر وہ رکھتی ہے. حضرت ہماری بیوی بڑی زبردست ہے, وہ تو رجب میں 5 روزے رکھتی ہے, شعبان کے مہینے میں 10 روزے رکھتی ہے. 50 رکھو, اب وہ تو بھوکی رہنے کے لیے پیدا بھوکی رہتی ہے. وہ صبح سویرے اٹھی ہے, سارا کام کر کے ناشتہ کھاتی ہے وہ 12 بجے, وہ دوپہر کھانا کھاتی ہے 5 بجے, رات کا کھانا کھاتی ہے 10 11 12 بجے. تو اب صاحب اس کو بھوکے رہنے کی بیماری ہے. اب روزہ اب بھوکا تو رہنا ہی ہے, چلو ایسے نہ ویسے نیت کر لیا, روزے کی روزہ رکھ لیا, اب نفل روزہ رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی عبادت گزار ہے, بہت بڑی عبادت گزار ہے. وہ ہر حال میں نماز پڑھے. جن دنوں میں نماز فرض نہیں ہے ان دنوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 500 بار درود پڑھ لے تاکہ نماز کی عادت لگی رہے. اور جن دنوں میں نماز فرض ہے, ایسا نہیں کہ پاک ہوئی رات میں تو اب وہ نہائیں گی 3 بجے, اس بیچ میں فجر چلی جائے, ظہر چلی جائے, نہیں, اس کو حساب کرنا ہوگا. پہلے زمانے کی خواتین وہ چراغ کی روشنی میں وہ اپنے کپڑے دیکھتی تھی کہ خون بند ہوا کہ نہیں ہوا, پھر فجر سے پہلے نہا دھو کر نماز فجر وہ ادا کرتی تھی. وہ چراغ جلا کے دیکھتی تھی کہیں ولد بند ہوا کہ نہیں ہوا. وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, قیامت کے دن کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا, وہ سب کچھ کرے گا. اب جہاں مطلب معلوم ہی نہیں, نفل روزہ ہے, رمضان کا فرض روزہ جو چھوٹا تھا 10 روزہ باری کے دنوں کا, اس کو عید کے بعد اس کو روزہ رکھنا فرض ہے مگر وہ رکھی نہیں. 25 سال سے روزہ رکھتی آ رہی ہے اور رمضان کے دن کے قضا روزہ رکھ نہیں رہی. اور پھر وہ رجب کا روزہ, رجب کے روزے کا سوال نہیں ہوگا, شعبان کے روزے کا سوال نہیں ہوگا, چاہے رکھو یا نہ رکھو. عادتاً کوئی نہیں, فضیلت ہے اشراق اور چاشت کی, مگر سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا فجر کا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھا رہے, اس کے بعد 20 منٹ کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے, ایک حج ایک عمرہ کا ثواب لے کے وہ آئے گا. مگر یہ فرض نہیں ہے. مگر فجر کی 2 رکعت نماز یہ فرض ہے. یہ چاشت اشراق کا ثواب ہے, حج اور عمرہ کا, اس سے بڑا ثواب ہے نماز فجر کا. چاشت کی نماز غریبی کا علاج ہے مگر یہ فرض نہیں ہے. اگر بندے کے پاس ٹائم ہے اشراق پڑھے, چاشت پڑھے. چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ جسم کے سارے پارٹس کا شکرانہ ہے وہ نماز, اور غریبی کا بہترین علاج ہے چاشت کی نماز, مگر فرض نہیں ہے. مولانا کو دیکھتے ہوں گے وہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ بچوں کو پڑھانا یا چاشت پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. ہمارا ایک آدمی ہے وہ نماز شروع کیا ابھی 70 سال کی عمر میں, اور 70 سال میں عمر نماز شروع کیا ہے تو نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں. تو ان کو تو ساری نمازوں کو حساب لگا کر کے اس قضا نماز کو ادا کرنا چاہیے, کیونکہ نماز ذمے سے ساقط ہی نہیں ہوگی جب تک کہ پچھلی ساری نمازوں کو وہ ادا نہ کرے. نماز اس کے ذمے برقرار رہی, چاہے 50 حج کر لیں یا 50 عمرہ کر لیں, جتنی نمازیں اس کے ذمے فرض ہیں اس کو تو ادا کرنا پڑے گا, بطور قضا ادا کرنا ہی پڑے گا. تو اب ان کو تو 50 سال کی عمر میں وہ نماز شروع کیا ہے, 15 سال مائنس کر دیں, 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے. اس کو بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے. وہ کیا بول رہا تھا, مولوی لوگ مغرب کے بعد وہ نفل نہیں پڑھتا ہے, یہ نفل نہیں پڑھتا, سنت پڑھا نکل گیا. اس کو 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے.
उस कज़ा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, ये पूरा मकदूर रकअत पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकअत नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपने 35 साल की नमाज कज़ा है उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे, तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन फुक़हाए कराम कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वह अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो माहाना बारी के दिन अय्याम होते हैं उन दिनों का रोजा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज रोजे की वो कज़ा ना कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, यह हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अब्नाउ सब'i सिनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो। जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो। जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। तो अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गाने दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करे ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा और का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज
नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा। या ईद बकरीद पढ़ लें, उसी से भला हो जाएगा। या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, और मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए। 10 रुपए का बताशा और तमन्ना कितनी है? 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी है। और जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गया। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे? आप पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बहार शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। और जो दरूद नहीं पढ़ना है वो 24 घंटे पान चबाएगा, वो 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा। बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत, न दुरूद, न दुआ, न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपना इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा। पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा, दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा। तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज़ें पंजगाना पढ़। बाकी 3 की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा, उतने टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा। मरेगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा। कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको
नमाज छुड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साथ म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना, बंद कमरे में 10 घंटा तक दरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि 1070 मर्तबा तौबा बंदे की टूट जाती है निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे, और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में, तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया, और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मज़ार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है, जिस पर लानत बरसे क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है, उनके सर हबैल नहीं उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबोपति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल है खुले हुए और वहां साहब झूम रही है, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है, वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा, जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला न रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब
اب اس کے بعد شوہر جہاد کے لیے چلا گیا، لیکن جہاں نفس آوارہ ہو، جہاں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہاں تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن جہاں اللہ کا ڈر ہے وہاں نفس پہ کنٹرول ہے، جہاں صبر ہے، جہاں شریعت پر عمل ہے، جہاں بزرگان دین، بزرگ خواتین کی زندگی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ ضرور گناہوں سے بچ جائے گی، اور اللہ سے جب دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا۔ یہاں تو بدن میں لگی ہے 1% آگ، یہاں تو 10% اس آگ کو بڑھانے والے سماج میں محرکات موجود ہیں، اس لیے کنواری 8 کلاس کی لڑکیاں وہ جیسی کی تیسی ہو گئی، اخبارات کی زبانی 8 کلاس ہائی اسکول میں پڑھنے والی عورتیں حاملہ ہو رہی ہیں، یا 9th کلاس میں پڑھنے والے بچے سب کے گرل فرینڈ ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر چلا ہوا ہے۔ ایسے میں دنیا میں تو آگ لگے گی، کبھی تو سونامی کا طوفان آئے گا، کبھی تو کورونا کا عذاب آئے گا، کبھی تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگے گی، کروڑوں کمانے کے بعد در کی ٹھوکریں لوگ کھائیں گے، 1 درجن خطرناک بیماریوں میں الجھیں گے، سماج زندگی سے سکون رخصت ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور ہم منمانے ڈھنگ سے جیئیں اور ہم جو دعا کریں اللہ ہم کو دے دے، نہیں ہوتا اللہ کی اس دنیا میں۔ آیا ہے کتابوں میں کہ جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے، اللہ اس قوم کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ جہاں حرام خوری ہو، وہ چاہے بندہ روتے روتے خون بہانے لگے، اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے اللہ۔ دعا قبول ہونے کے لیے حلال غذا شرط ہے، دعا قبول ہونے کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ مدینے کی خاتون کی شادی ہوئی، شادی کے بعد شوہر سرحد پہ چلا گیا، اب ان کی جوان بیوی گھر میں کیسے رہتی ہے؟ 1 دن 2 دن نہیں، وہاں شوہر 27 سال کے بعد لوٹتا ہے۔ سوچا اس سال کے بعد چلے جائیں، آواز آتی اسلام بچاؤ، پھر چلے جاتے سرحد پہ، پھر سوچتے اب 6 مہینے کے بعد گھر جاؤ، پھر آواز آتی اسلام بچاؤ۔ چونکہ جو زیادہ بہادر ہے اس کی ضرورت سرحد اسلام پہ ہے، وہ مجاہد 27 سال 1 سال 2 سال کرتے کرتے 27 سال کے بعد جب مدینہ لوٹا ہے، 27 سال تک ایک جوان لڑکی کیسے اپنے آپ کو بچائی ہے کہ پڑوس کے مردوں کو بھنکنے لگی کہ اس گھر میں کون خاتون رہتی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کے سر کے بال کیسے ہیں۔ جو بھی اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے یا اللہ سے ڈرنا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اسی طرح کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، جو نماز چھوڑنا چاہتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو اب وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں، کنٹرول میں رکھوں، اس کے لیے کہا ہے ساری انرجی انہوں نے عبادت میں لگا دی، تلاوت میں، کتابوں کے مطالعے میں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک لڑکا ان کو عطا فرمایا، چونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہ کر کے وہ شوہر سرحد پہ گیا تھا، اب وہ امید سے ہو گئی تھی، اور پھر جب بچہ تولد ہوا 9 مہینے کے بعد، پھر اس بچے کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے انہوں نے سارا مال لگا دیا اور ساری انرجی لگا دی، عبادت، ریاضت، بچوں کی بہترین تربیت، اسی میں ساری زندگی کے دن گزر گئے۔ نہ اجنبی مردوں کا خیال آیا، نہ کسی پیار محبت کے نام پہ آبرو کے تباہ کرنے کا خیال آیا، اور جہاں کبھی وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہوگا تو اس وسوسے کو دبانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں گی۔ عظیم آباد پٹنہ کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، انہوں نے شادی کی بات لوگوں نے کی، انہوں نے شادی نہیں کی، کہا میں شادی نہیں کروں گی، انہوں نے شادی نہیں کی، مگر اللہ کا ڈر، سماج کی غیرت کا خیال، اپنی غیرت کا خیال، ماں باپ کی آبرو کا خیال اتنا رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ جب مرنے سے پہلے وصیت انہوں نے کی کہ اب تو میں مر رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، مگر میری وصیت کو نوٹ کر لینا میرے خاندان والوں، تمہاری جب بیٹیاں بیوہ ہو جائیں ان کو بیوہ مت چھوڑنا، ان کو شادی کرا دینا، میری مثال مت دینا کہ فلاں کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہوئی، ساری زندگی شادی نہیں کری اور پھر عبادت میں زندگی کے دن گزار دیا، ذرہ برابر ان کے سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں لگا۔ خاندان، ماں باپ اور مرنے والے شوہر سب کی آبرو بچا کے وہ دنیا سے چلی گئی، مگر میری نصیحت سنو، تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو عفیفہ پاک دامن پایا، اپنے صبر کرنے والی، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، کروڑوں میں ایک پایا۔ کہا اب میری نصیحت سن لو، تم سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کا شوہر مر جائے اس کو شادی کرا دینا، بغیر شوہر کے کسی خاتون کو مت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ میری مثال تم دو گے، لیکن جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب کوئی شہر کوتوال اگر گلی میں وہ آواز لگاتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل جاؤں، اس کوتوال مرد سے میں لپٹ جاؤں، مگر اللہ کا ڈر، مصطفیٰ سے شرم و حیا،
अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि दो बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, दो बच्चा है उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहां तो 4-4 बच्चे की मां शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाली नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों ने वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की मां, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई, करोड़ों का बंगला छोड़कर अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई। इसलिए कहा गया है कि करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा अल्लाह ने? पैदा करने वाले रब ने, जिसने मर्द औरत को पैदा किया है, उस रब ने मर्दों की ड्यूटी, औरतों की ड्यूटी क्या बताई? औरतों घर में ठहरी रहो। जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा सड़कों पर मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानूसी की तालीम दे रहा है, ट्रेडिशनिस्ट है, मौलाना पुराने ख्याल में जी रहा है। अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर-चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो। अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा, सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न और जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटी में ज़िना, शेल्टर होम में ज़िना, तहखाने में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटीज में ज़िना, यहां तक कि आप क्लास के बच्चों में ज़िना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह ज़िना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था? जब तेरे मालदार लोग बकील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा। आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना खाए वह मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ
कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है, उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है, भले और बुरे की तमीज सीखिए। पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर परनाज शाह से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। बर्नार्ड शाह जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शाह ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वह पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढ कर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफ़ा इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैत मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचिएगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत मोइए, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की गीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा,
ایک حدیث نہیں سیکھی، اب وہ اپنے دماغ سے ہندوستان کے ماحول، فلسطین کے ماحول کو دیکھا. کیا فلسطین کو دیکھے گا تم؟ 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے معلوم ہے تمہیں قرآن پاک کا کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 6 لاکھ فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے نکلے. قوم جبارین سے جہاد کرنے نکلے. ایک مسلمان رئیس یہودیوں نے، ان قوم جبارین کے لوگوں نے اپنی خوبصورت بہو بیٹی کو چھوڑ دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے اکثر لوگوں نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، مگر ایک مالدار رئیس شخص تھا، ایک عورت کو دیکھا، اس سے نہیں رہا گیا، اس کو گود میں اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کیا کہا؟ حضور یہ عورت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پرجلال لہجے میں کہ خبردار، اسے ہٹاؤ اپنے سے، تیرے لیے حرام ہے. مگر چونکہ بھوت سوار ہو چکا تھا، آج مطلبی آدمی ان کے مطلب کا فون کرے گا، مطلب کا فتویٰ پوچھے گا، فتوے کو ریکارڈ کرے گا، اس کو سوشل میڈیا پہ چھوڑے گا، مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرے گا. ظالم، ایک مسلمان کی عزت پہ پردہ ڈالنے کا کتنا اجر ہے تمہیں معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تیرے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. مگر حق بات بولنے کو اس سے مت جوڑنا. حق بات بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ایک مومن کو رسوا کرنا. ایک مومن کو جہنم سے بچانا، اس کو برائی سے بچانا، اس کو غلط کام سے بچانا، یہ رسوا نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ان کی خیر خواہی کا ایک نتیجہ ہے کہ تاکہ یہ جہنم نہ جائے. لیکن وہاں آدمی کے بند کمرے کا کوئی عیب ہے جس کو کوئی سماج نہیں جانتا ہے، اس عیب کو یہاں سے جا کے وہاں بیان کر دینا یہ حرام ہے. یہ چغل خوری، یہ غیبت کرنا، ایک مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے ان کا عیب بیان کرنا، یہ غیبت ہے. سر سے لے کے پاؤں تک غیبت کی کیچڑ میں پھنسا ہوا وہ امر بالمعروف کرنے کو برا کہہ رہا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک غیبت اور جھوٹ اور دوسروں کے چھپے ہوئے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے مزہ لے کے بیان کرنے والا وہ صاحب امر بالمعروف کو برا سمجھ رہا ہے. ذرا آنکھ بند کر کے اپنے احوال، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے. امر بالمعروف کرنا، نیک بات کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو عزت دینا، ان کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے. البتہ رہی بات کہ امر بالمعروف کرتے ہوئے آدمی کا تیور کبھی بگڑتا ہے، کچھ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہو جاتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے. آدمی کو زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں، ان لوگوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری ہے، ان لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. بس وہ چیپٹر جو میں کھولا اس چیپٹر کو میں پورا کر دیتا ہوں. ابھی صاحب چوک چوراہے پہ بیان کرنے والا اسلام کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، جس کو اسلام کا الف تک معلوم نہیں. یہ نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں، صاحب دوسرے لوگ بولتے ہیں اسلام خطرے میں، بہت سارے ملا جی کہتے ہیں اسلام خطرے میں. اسلام خطرے میں کیسے؟ اسلام خطرے میں حضور نے فرمایا ہے لا يبقى على ظهر الارض بیت مزرع ولا وطن الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. مصطفیٰ کی مانے کہ تمہاری مانے، ہمارا پیغمبر سچا. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس روئے زمین کا کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. کوئی کچا گھر نہیں بچے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو کے رہے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو بندہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اسلام کے بارے میں تبصرہ مت کیجیے، ساری دنیا اللہ چلاتا ہے. ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس اپنا مقصد حیات پر فوکس کیجیے. باقی دنیا چلانا یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ نے چلایا ہے. اب ذرا سنیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں کافر قوم کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو نیم برہنہ بنا کے سجا کے دھجا کے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کو بلعام بن باورا نے جو تباہ و برباد ہوا، اس نے کہا تھا اگر ایک بھی آدمی زنا کر لیا تو 6 لاکھ فوج ہار جائے گی. یہ ٹھیک کام کر گیا اس کا. اس نے اپنی خوبصورت بیٹوں کو سجا کے جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج شہر میں داخل ہوئی بھیج دیا. ایک رئیس مالدار اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فوراً اس کو الگ کر دیا اپنے سے، اب الگ کر دے. مگر چونکہ شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا اس لیے وہ بندہ اپنے خیمے میں لے گیا، اس کے ساتھ منہ کالا کیا. منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ کا عذاب پھوٹ پڑا. ایسا عذاب پھوٹا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے. 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ
ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर में। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशिरक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पाखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है। इस्लाम खतरे में है, डरा के वोट लिया, अपनी दौलत जमा की और अय्याशी की, यही सब होता है। वो इस नेता इस्लाम के नाम पे वोट लेगा जो इस्लाम का काम करेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है। बहुत सारे आए, करोड़ों लोग शहीद हो गए। 8 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। 50 लाख से ज्यादा इन यहूदियों को हिटलर ने ज़ब्ह किया है जर्मनी में। ऐसे ऐसे लोग मारे गए। इस्लाम के नाम पे शहीद होने वाले लोग, बेशुमार लोग शहीद हुए। बहुत सारी जंगें हुई और फिर ये मामूली सी जंग क्या, ये जंग भी एक फेवरेबल जंग। मरना तो सबको आई, चाहे कोई पखाना रूम में मरे, चाहे कोई लेटरिन रूम में मरे, चाहे एक्सीडेंट करके मरे, चाहे मैदान जंग में शहीद होकर मरे। मगर फिलिस्तीन की औरतें 70 साल से मुसीबत झेल रही है। वह धन्य है वो माएँ जो कभी फिलिस्तीन छोड़ने का प्लान नहीं बनाया। वो बच्चा पैदा करती हैं इसीलिए ताकि मेरा बच्चा मस्जिद अक्सा की आजादी के नाम पे शहीद हो जाए। इनका खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल यहूदी पसपा होंगे, किबले अव्वल आजाद होगा और आजाद होकर रहेगा। आजादी के करीब बिल्कुल अब मामला पहुंच गया है। ये तो साल भर 14 महीने हो गए। 14 महीने में 50,000 लोग, बच्चे औरतें शहीद हुई। वो तो जमीन शहादत की है, शहादत के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। हम लोग बर्गर खाने, चाउमीन खाने, इश्कबाजी करने, घर मकान का मुकाबला करने, चाय की दुकान पे चुस्की लेके समाज का डकैत जो अपनी नौकरानी से जिना करता है उसकी ग़ीबत कोई नहीं करता। जो बच्चा, जो मौलाना फजर से लेकर के ईशा तक नमाज़े पंजगाना पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इंसान पैदा करना, इनका जो प्लान है इनके खिलाफ। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सब और साथ वो गाँव का रईस जिना कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो सूद खा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं।